Hi guys, so welcome to Prep IS. This is a 3-month free crash course for UPSC prelims. This course started on 17th March and will continue till 20th June. Post which you will be having option to attempt the 5 high quality full length mock test. These tests will be very beneficial for you. Basically, in this course, we are comprehensively covering the UPSC CSE prelims syllabus, and the syllabus is being taught by faculties who have cleared prelims and mains exams multiple times and also having many years of teaching experience, right? So, along with the static portion, the course will also cover the dynamic current affairs portion, which will be uploaded on IS Prelims Telegram channel, for which you can join. Those who have not joined, please join that Telegram channel to get the notes and all the study material. Daily quiz is uploaded on that. So on every Sunday, we are also having a doubt clearing session on every Sunday to ensure that you get the clarity on each and every topic, because it is believed that if you are not having the doubts, then you are not studying. So basically, it is important to have doubts, right? Then along in this syllabus, we are also covering CSAT syllabus. CSAT is equally important. You need at least 33% marks to clear prelims examination. So doesn't matter अगर आपके prelims में के GS पेपर 1 में अगर आपका स्कोर 130 140 भी आ रहा है, and if you are not able to clear this paper 2 यानी CSAT, that means you will not be able to clear, you will not be able to qualify for the mains examination. So better I suggest everyone to take CSAT classes also, and also practice CSAT questions, right? So today we are going to start our lecture number 17. Lecture number 17. Basically, in lecture number 16, we have started banking sector. Still in lecture number 16, we have completed our Exim Bank. So now we will be continuing from NABARD, that is one Agriculture and Rural Development Bank, National Bank for Agriculture and Rural Development. So it was established in 1982, and yeah, इस टाइम आप मेरे को बताना which 5 year plan was there. Which 5 year plan? ठीक है. देन ये एक एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो एग्रीकल्चर और रूरल क्रेडिट में क्रेडिट अवेलेबल कराना इंश्योर करता है. ये शिव रमन कमेटी की रिकमेंडेशन पे गठन किया गया था, राइट. देन प्रीवियसली जब ये बना था तो इसमें 0.4% शेयर गवर्नमेंट के पास था, बाकी शेयर आरबीआई के पास था. बट अब रिसेंटली 2019 में आपने देखा होगा कि आरबीआई ने अपनी सारी सारी ऑनरशिप गवर्नमेंट को दे दी है. ठीक है, लगभग कुछ 20 करोड़ के आसपास में जितनी भी इनकी ऑनरशिप थी वो सारी गवर्नमेंट को दे दी है. तो नाउ इट इज कंप्लीटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट. Similarly, in the same year, you will see that authorized capital of NABARD has also been increased to 30,000 crore. Yani its business size is increased now. Business size is increased, right? So we have already discussed what is authorized capital, what is paid up capital, what is issued capital, what is subscribed capital, right? So I hope you guys are very clear with those type of capitals. कुछ भी doubt होता है then you can put in the comment, or also can raise your doubts in the through the Google form which is attached in the description of the video, right? So currently NABARD is 100% owned by Government of India, right? So it is 100% owned by Government of India. RBI has no share in NABARD. It is only acting as a regulator, right? So its authorized capital is 30,000. Its authorized capital is 30,000 crores. Okay. So now moving on to NHB. NHB is National Housing Bank. NHB is National Housing Bank, राइट. सो इट वाज एस्टेब्लिश, इसका जो गठन हुआ था वो 1988 में एज अ सब्सिडरी, आरबीआई की सब्सिडरी के तहत इसका गठन किया गया था. और ये हाउसिंग फाइनेंस के फील्ड में एपेक्स बॉडी है जो करंटली है ये 100% ओन्ड किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. प्रीवियसली अभी रिसेंटली 2019 में जब नाबार्ड के शेयर्स आरबीआई ने गवर्नमेंट को बेचे थे, उसी टाइम पे एनएचबी के भी शेयर्स आरबीआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सेल किए थे. लगभग कुछ आई डोंट रिमेम्बर, इट इज समवेयर 1450 करोड़ के आसपास में ये जो शेयर्स थे
आरबीआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेचे थे, यानी करंटली 100% ये इसकी जो ऑनरशिप है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, और जो आरबीआई है वो इसका सिर्फ और सिर्फ रेगुलेटर है, मतलब इसके जो बैंकिंग एक्टिविटीज है उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, नाउ मूविंग टू एनबीएफसीज। देखो जब मैंने आपको स्टार्टिंग में लेक्चर नंबर 16 अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा तो पहले उस लेक्चर नंबर 16 को देख लेना, उसके बाद लेक्चर नंबर 17 पे आना। मैंने आपको तीन टाइप के बेसिकली आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बताए थे। कौन कौन से थे? पहला मैंने आपको बैंक्स बताया था, राइट। दूसरा मैंने आपको डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बताया था। तीसरा मैंने आपको एनबीएफसीज बताया था, राइट। एनबीएफसीज में मैंने आपको चार चीजें बताई थी जो हम पढ़ेंगे। माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, देन हमने आपको म्यूचुअल फंड्स बताए थे, ठीक है, ये सब हम आज डिस्कस करेंगे। देन आपको हेज फंड्स बताया था मैंने, ये चौथा आएगा हेज फंड्स। देन नेक्स्ट आएगा आपका इंश्योरेंस, राइट। देन नेक्स्ट आएगा आपका इंश्योरेंस। नेक्स्ट आएगा आपका इंश्योरेंस, राइट। सो स्टार्टिंग विद दिस म्यूचुअल फंड माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बेसिकली जो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, ये टाइप ऑफ एनबीएफसीज होते हैं, और ये वीकर सेक्शंस को प्रोवाइड करते हैं फाइनेंस। इनका काम क्या होता है? फाइनेंस प्रोवाइड करना वीकर सेक्शंस को। अब जब भी मैं कोई वीकर सेक्शंस बोल रहा हूं तो आपको उसकी टेक्निकल डेफिनेशन पता होना चाहिए। वीकर सेक्शन मतलब व्हाट डू यू मीन बाय वीकर सेक्शन? वीकर सेक्शन वो होंगे इसकी टेक्निकल डेफिनेशन के हिसाब से जिनकी अर्बन में एनुअल इनकम अर्बन एरियाज में 1,20,000 से कम होगी और रूरल एरियाज में 60,000 से कम होगी। ठीक है, तो अर्बन और रूरल कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो आप लोगों को पता होगा। एरियाज जिनमें 75% मेल पॉपुलेशन, 75% से ज्यादा मेल पॉपुलेशन अगर एग्रीकल्चर वर्क में इन्वॉल्व है तो वो आते हैं रूरल सेक्टर में। अगर लेस देन 75% है तो वो आते हैं आपके अर्बन एरियाज में, राइट, अर्बन एरियाज में। सो वीकर सेक्शंस वो होंगे जिनकी अर्बन एरियाज में जो एनुअल इनकम होगी वो 1,20,000 से कम होगी, और रूरल एरियाज में जो एनुअल इनकम होगी वो आपकी 60,000 से कम होगी, राइट। देन दीज आर नॉट परमिटेड टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स। आप लोग मेरे को कमेंट करके बताओ क्यों। मैं आपको बोल रहा हूँ कि एनबीएफसीज कैटेगरी में जो आपके एमएफआईज आते हैं दे आर नॉट परमिटेड टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स। व्हाई? कमेंट करके बताओ मेरे को। देन उसके बाद एमएफआईज जो होते हैं ना, ये हमेशा बैंक से, दूसरे बैंक से बोरो करते हैं टू लैंड टू वीकर सेक्शंस, मतलब वीकर सेक्शंस को देने के लिए। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आपका बंधन बैंक है, फॉर एग्जांपल योर बंधन बैंक। तो बंधन बैंक ने क्या करा? बंधन बैंक ने क्या करा? एसबीआई से पैसे लिए, इसको रिटर्न में इसने इंटरेस्ट दिया, 9% का इंटरेस्ट दिया। एसबीआई ने इसको 40 करोड़ रुपए दे दिए। अब इस 40 करोड़ में आगे ये कस्टमर्स को देगा, ठीक है, कस्टमर्स को देगा। जैसे इसने दे दिए 25 लाख तक के लोन दे दिए, या फिर 10 लाख तक के बहुत सारे लोन दे दिए, ठीक है। इन रिटर्न कस्टमर इसको क्या पे करेगा? इंटरेस्ट रेट पर इंटरेस्ट रेट पे करेगा। और जो इंटरेस्ट रेट होगा ना बंधन बैंक का या किसी भी एमएफआई का, वो अप टू 26% हो सकता है। इट कैन बी अप टू 26%, राइट। सो बिकॉज इन एमएफआईज का, अब आप सोच रहे होंगे एमएफआईज वीकर सेक्शंस को लोन दे रही है तो इसका इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए, पर आरबीआई ने इसका इंटरेस्ट रेट इन लोगों को अप टू 26% तक चार्ज करना अलाउ कर रखा है। रीजन बीइंग कि ये वीकर सेक्शंस को लोन दे रहे हैं तो यहाँ पे रिस्क ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है, राइट, रिस्क इज मोर। मैं आपको यहाँ पे मैंने आपको मेंशन कर दिया है, हाई रिलेटिवली हाई इंटरेस्ट रेट होता है, 26% तक चार्ज कर सकते हैं क्योंकि हाई रिस्क है, रिस्क ज्यादा है। कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड इज मोर बिकॉज ये बैंक से बोरो कर रहे हैं, ये बैंक से बोरो कर रहे हैं और उसके बाद कस्टमर को दे रहे हैं। तो जो ये बैंक एमएफआई को दे रहा है तो एमएफआई को इसके बदले में इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ना। तो ये इंटरेस्ट क्या हो जाएगा इसका? कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फंड्स, कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फंड विल बी द इंटरेस्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देन कम्स द हाई कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस। हाई कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन कैसे? भाई आप वीकर सेक्शन को दे रहे हो, ठीक है, अब वो आके तो आपको खुद नहीं देंगे ना, सारे तो ऐसे नहीं होंगे ना। अब आपको अपने बैंक एसोसिएट्स भेजने पड़ेंगे, बैंक एसोसिएट्स भेजने पड़ेंगे। क्यों? ताकि टाइमली आप इनकी ईएमआई कलेक्ट करवा सको। टाइमली ईएमआई कलेक्ट कराने के लिए तो उनकी ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आएगा,
उनके सैलरीज वगैरह होंगे, आपको ज्यादा बैंक एसोसिएट्स रखने पड़ेंगे। सो दिस इज हाई कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। मोर ओवर ये जो होते हैं ये रूरल एरियाज वगैरह में होते हैं, तो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन मतलब डॉक्यूमेंटेशन वर्क, ज्यादा पेपर वर्क होता है इनका, डिजिटल वर्क तो इनका होता नहीं है, तो इसलिए इनकी हाई कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी ज्यादा होती है। देन ये जो लोन देते हैं ये वेरी शॉर्ट टर्म के लिए, समय के लिए लोन देते हैं, मतलब 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, कभी भी लॉन्ग टर्म लोन नहीं देंगे, कभी भी लॉन्ग टर्म लोन नहीं देंगे, क्योंकि इनका ऑपरेशन साइज ही स्मॉल होता है। यानी इनका जो ऑपरेशन साइज होता है वो स्मॉल होता है। इन्होंने जिस बैंक से पैसा उठाया है उस बैंक को वापस भी तो करना है ना पैसा, तो इसलिए इनको हमेशा शॉर्ट टर्म लोन दिया जाता है। और जो ये लोन देते हैं वो विदाउट कोलेट्रल देते हैं, यानी रिस्क और बढ़ जाती है, रिस्क बढ़ जाती है, तो इसलिए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ये लोग चार्ज करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपका जो इंस्टॉलमेंट होता है वो वीकली टाइप में इंस्टॉलमेंट होता है, मतलब जैसे अभी हम बैंक का इंस्टॉलमेंट देते हैं, जैसे आपने हाउस लोन लिया, जैसे अगर आपने कोई हाउस लोन दिया तो आप उसमें एनुअल इंस्टॉलमेंट भी दे सकते हो, मंथली भी दे सकते हो, राइट। पर जो ये माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, ये हमेशा शॉर्ट टर्म इंस्टॉलमेंट लेना प्रीफर करते हैं, यानी वीकली इंस्टॉलमेंट लेना प्रीफर करते हैं ये, ठीक है। देन ये जो लोन देते हैं वो मेनली प्रोडक्शन एक्टिविटीज वगैरह के लिए देते हैं, ताकि इनका जो रेवेन्यू है या जो इन्होंने प्रिंसिपल अमाउंट दिया या जो इंटरेस्ट अमाउंट दिया वो इनके पास वापिस आ जाए। तो जब हम एमएफआई की बात करेंगे तो आपको एक कमेटी का नाम याद रखना है, वाईएच मालेगाम कमेटी। ये 2010 में सेटअप करी गई थी, और इनकी रिकमेंडेशन पे ही माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एक सेपरेट कैटेगरी दी गई थी। ये अब एनबीएफसी एमएफआई के नाम से यानी कैटेगरी में आते हैं, राइट। तो एमएफआई को यहाँ से आपको सेपरेट कैटेगरी दी गई थी, किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे दी गई थी, वो वाईएच मालेगाम कमेटी की रिकमेंडेशन पे दी गई थी, ठीक है। नाउ जो भी बैंक्स, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था आपको, ये जो भी बैंक होते हैं म्यूचुअल फंड्स थ्रू सेल ऑफ देयर यूनिट्स, ये होते हैं, कहाँ गए, बैंक लेंडिंग पीएसएल, यस दिस कम्स अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एसबीआई ने आपका बंधन बैंक को लोन दिया, तो ये जो एसबीआई ने इसको 40 करोड़ का लोन दिया है ना, वो उसकी पीएसएल कैटेगरी में आएगा। व्हाट इज पीएसएल? इट इज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। ये मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस पहले कर चुका हूं कि वो सभी इंडियन बैंक या वो सब फॉरेन बैंक्स जिनकी हमारी कंट्री में 20 से ज्यादा ब्रांचेस होती हैं, 20 से ज्यादा ब्रांचेस होती हैं, उनको अपना 40% ऑफ क्रेडिट पीएसएल कैटेगरी में देना होता है। अब वो सभी फॉरेन बैंक जिनकी 20 से कम ब्रांच है उनको 32% ऑफ टोटल क्रेडिट पीएसएल कैटेगरी में देना होता है। तो जो भी बैंक एमएफआई को लैंड कर रहे हैं वो सभी के सभी आपकी वो सब अपनी वो वाला जो भी लोन उन्होंने दिया है वो अपनी पीएसएल कैटेगरी में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देन दूसरा आता है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? ये अपनी यूनिट्स को सेल करते हैं, मतलब जैसे आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो क्या होगा, जैसे म्यूचुअल फंड्स की कंपनी खुली होंगी, लाइक फॉर एग्जाम्पल से एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड। तो अगर अब आपने यहाँ पे अपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहा तो आप 1 लाख रुपए इस एसबीआई म्यूचुअल फंड को दे दोगे, ठीक है। एसबीआई म्यूचुअल फंड को दे दिया। अब एसबीआई म्यूचुअल फंड क्या करेगी, आपके इस 1 लाख रुपए को, ये 1 लाख यहाँ से आया, 1 लाख दूसरे कस्टमर ने दिया, 3 लाख दूसरे कस्टमर ने दिया, तो इनके पास एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स होते हैं, वो इन सब पैसों को, ये जो बास्केट जो पूल ऑफ मनी कलेक्ट हुआ है इनके पास, अब ये इनको अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, अलग अलग शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, और इन शेयर्स के डिविडेंड के परसेंटेज के बेसिस पे ही आपको अपने 1 लाख पे रिटर्न मिलेगा। सो दीज आर म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। तो ये अपनी यूनिट्स आप लोगों को सेल करते हैं, मतलब अगर आपने 1 लाख रुपए दिए तो ये एसबीआई म्यूचुअल फंड अपनी 5 यूनिट आपको दे देगा, ठीक है। 5 यूनिट का परसेंटेज प्रॉफिट कैलकुलेट होगा टोटल डिविडेंड में से, और उतना परसेंटेज आपको 1 लाख पे रिटर्न मिल जाएगा। दिस इज हाउ म्यूचुअल फंड्स ऑपरेट, ठीक है। आपको ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है, बस म्यूचुअल फंड्स का याद रखना, ये हमेशा अपनी यूनिट सेल करते हैं, शेयर्स नहीं। यूनिट्स और शेयर्स में डिफरेंस होता है, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नहीं पता होता कि आप
ये जो पैसा है वो कौन से शेयर में, किस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट हो रहा है, वो सब ये अपने आप करते हैं। आपको तो इन रिटर्न इंटरेस्ट मिलता रहता है। एंड दिस म्यूचुअल फंड्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो शेयर्स हैं ये भी तो मार्केट रिस्क पर डिपेंड हो रहे हैं। तो ये कभी परसेंटेज फंड अमाउंट हमारा ज्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। जब प्रॉफिट कम होगा तो 5% रिटर्न की वैल्यू बढ़ जाएगी, जब प्रॉफिट कम होगा, डिविडेंड कम आएगा तो 5% रिटर्न की वैल्यू घट जाएगी आपकी। इस तरीके से आपका यहाँ पे काम चलता है म्यूचुअल फंड्स में। देन कमिंग टू हेज फंड्स। हेज फंड्स मतलब होता है, वो हेज फंड्स वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं जो अपने फंड्स, मतलब जो भी उनका फंड होता है, ये अपने यूनिट्स को जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं, मतलब टाटा, अंबानी, इन सबको बेचते हैं और उनको अपनी यूनिट सेल करते हैं और उनसे पैसा उठाते हैं और फिर उसको इन्वेस्ट करते हैं। दिस इज वेरी सिमिलर टू म्यूचुअल फंड्स, बट द ओनली डिफरेंस इज म्यूचुअल फंड्स में कॉमन मैन भी इन्वेस्ट कर सकता है, कॉमन मैन भी इन्वेस्ट कर सकता है। बट जो हेज फंड्स होते हैं ना, उन वो हमेशा अपनी यूनिट्स को हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को सेल करते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को सेल करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को बस बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इससे ज्यादा आपको समझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक ऑप्शनल वाले पढ़ेंगे इससे ज्यादा डिटेल में, जीएस लेवल पे आपको इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। बस ये याद रखना, म्यूचुअल फंड्स हमेशा अपनी यूनिट सेल करते हैं, मार्केट से पैसा उठाते हैं उन यूनिट्स को सेल करके, और उस पैसे को बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, द हेज फंड्स इज आल्सो वेरी सिमिलर टू म्यूचुअल फंड्स। द ओनली डिफरेंस इज, जो ये हेज फंड्स होते हैं ये हमेशा अपने जो फंड होते हैं वो हमेशा अपनी यूनिट सेल करते हैं हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स को, और उस पैसे को वो डिफरेंट डिफरेंट शेयर्स में लगाते हैं। ठीक है, देन आपका नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनीज कॉमन चीज है, आप लोग प्रीमियम्स खरीदते हो। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज का पैसा कहाँ से आता है, आपके जो आप प्रीमियम पे करते हो, 1200 रुपए महीना पे कर रहे हो या 9,000 रुपए पर ईयर का पे करते हो ना अपना। तो दे आर ऑफ टू टाइप, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। ये सब आप लोगों को पता है। लाइफ इंश्योरेंस बेसिकली होता है जो आपको एक्सीडेंटल डैमेज देता है, एक्सीडेंट हो गया या एट द टाइम ऑफ डेथ क्या आपको इंश्योरेंस मिलेगा, इस तरीके से। जनरल इंश्योरेंस होता है जैसे आपका कार का इंश्योरेंस हो गया, बाइक का इंश्योरेंस हो गया, आपके जो हाउस थेफ्ट इंश्योरेंस हो गया, लैपटॉप का इंश्योरेंस हो गया आपका, इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो इनकी जो बेसिकली ये जो फंड रेस करते हैं ये थ्रू प्रीमियम्स रेस करते हैं, और जो आप प्रीमियम से फंड रेस होता है ना, वो फिर उसको मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। कहाँ करते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इस इन्वेस्टमेंट पर आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, ये याद रखना। इस इन्वेस्टमेंट पर आपको कोई डिविडेंड या कोई परसेंटेज प्रॉफिट नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आप ये अपना जो भी जिस भी पर्टिकुलर एरिया का आपने इंश्योरेंस ले रखा है वो इंश्योरेंस आप क्लेम कर सकते हो, अगर इन केस आपको उसकी जरूरत पड़ती है तो। आपके प्रीमियम पर आपको कोई परसेंटेज रिटर्न नहीं मिलेगा, आपका प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनीज मार्केट में इन्वेस्ट कर देंगे। ठीक है, जो उनको मार्केट में इन्वेस्ट करने से जो प्रॉफिट हो रहा है ना, वो उस प्रॉफिट में से आपको कोई परसेंटेज नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ ये फैसिलिटीज दी जाएगी कि जो आपने इंश्योरेंस लिया है आप उसका अमाउंट क्लेम कर सकते हो, अगर आपको उस इंश्योरेंस को जरूरत यूज करने की नीड आ गई है तो। ठीक है, अब इसके अलावा एक नई चीज आपको सुनने को मिलेगी, ये होते हैं यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ये याद रखना, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान काफी न्यूज में भी है आजकल ये। ठीक है, तो बेसिकली इट्स अ मिक्सचर ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्लस म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस प्लस म्यूचुअल फंड्स इज इक्वल टू यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। इसमें क्या होता है, जो पॉलिसी होल्डर्स होते हैं, यानी जो लाइफ इंश्योरेंस के पॉलिसी होल्डर्स होते हैं ना, उनको सर्टेन नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट यूनिट्स दे दी जाती है। मतलब कोई अगर एबीसी कंपनी है, एबीसी म्यूचुअल फंड्स है, ठीक है, एबीसी म्यूचुअल फंड, अब इसने क्या करा, अपना यूएलआईपी प्लान निकाला। इस यूएलआईपी प्लान क्या था कि ये जो आपने लाइफ इंश्योरेंस लिया है उस लाइफ इंश्योरेंस के बदले पॉलिसी होल्डर्स को सर्टेन नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट यूनिट्स दे दी जाती हैं। यानी अब इसमें क्या मतलब हो गया इसका, यहाँ पे जब आप प्रीमियम पे कर रहे थे तो आपको मार्केट में इन्वेस्ट करने पे कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा था, बट यहाँ पे आपको इंश्योरेंस प्रीमियम तो देना ही पड़ेगा। पर इसके साथ साथ इन्होंने जो आपके पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट किया है ना, इन्होंने जो आपके पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करा है उस पे आपको परसेंटेज प्रॉफिट भी मिलेगा। परसेंटेज प्रॉफिट यानी परसेंटेज रिटर्न भी आपको मिलेगा।
ये पॉइंट आप लोग बिल्कुल याद रखना। दिस इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, लाइफ इंश्योरेंस प्लस म्यूचुअल फंड्स इज इक्वल टू यूएलआईपी, दैट इज पॉलिसी होल्डर्स आर प्रोवाइडेड विद सर्टेन नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट यूनिट्स आल्सो। यानी इसका मतलब है इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस में आपको कभी भी मार्केट में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है उस पर आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, बट यूएलआईपी दैट इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान पे हमेशा आपको रिटर्न मिलेगा, उसके साथ साथ आप इंश्योरेंस भी क्लेम कर सकते हो। ठीक है, देन कम्स द मर्चेंट बैंक्स। बेसिकली मर्चेंट बैंक्स को ना इन्वेस्टमेंट बैंक्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मर्चेंट बैंक्स को आपका इन्वेस्टमेंट बैंक्स के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो मेन रोल होता है वो होता है फाइनेंशियल कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करना। यानी कोई इन्वेस्टर अगर बैंक्स के पास जाता है और उससे पूछता है कि मैं अपने अपना फंड कैसे रेज करूं या आईपीओस को कैसे मेंटेन करूं, अंडरराइटिंग के लिए किसको अप्रोच करूं। अंडरराइटिंग मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है लेक्चर नंबर 16 में, आप प्लीज वो वीडियो देख लेना। अंडरराइटिंग टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे टर्म्स की डायरेक्ट डेफिनेशन प्रीलिम्स में पूछी जाती है। ठीक है, तो इन मर्चेंट बैंक का जो रेगुलेटर होता है वो हमेशा सेबी होता है। सो कहने का मतलब ये है कि जितने भी बैंक्स होते हैं उनके अंदर एक मर्चेंट डिवीजन होता है जो अपने कस्टमर्स को, यानी जो उनके कॉर्पोरेट कस्टमर्स होते हैं या वो वाले कस्टमर्स जो फंड रेज करना चाहते हैं या आईपीओस को मैनेज करना चाहते हैं, वो इन बैंक के मर्चेंट डिवीजन में जाके कंसल्टेंसी सर्विसेज ले सकता है। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक एसबीआई है तो एसबीआई के अंदर आपके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे, जैसे डेप्ट रिकवरी डिवीजन। ठीक है, डिवीजन मतलब डिपार्टमेंट। ठीक है, देन आपका रिस्क मैनेजमेंट डिवीजन, राइट। सो सिमिलरली एक ऐसी आपका मर्चेंट डिवीजन भी होगा, इसका काम क्या होगा, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करना। फाइनेंशियल कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करना अपने इन्वेस्टर्स को या फिर अपने कस्टमर्स को। और ऐसा नहीं है कि आपको उस बैंक का कस्टमर होना जरूरी है तभी आप इसके मर्चेंट बैंक को अप्रोच कर सकते हो, नहीं। अगर आप इसके कस्टमर भी नहीं हो ना तो आप इसके सेपरेटली जाके भी इसके मर्चेंट बैंक को आप अपनी सर्विसेज ले सकते हो, इनकी सर्विसेज ले सकते हो वहां से। ठीक है, क्लियर है ये सारे पॉइंट। मर्चेंट बैंक्स हो गया आपका, इंश्योरेंस कंपनीज, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स, राइट। देन कम्स योर इस्लामिक बैंक्स। इस्लामिक बैंक्स भी आपने काफी सुना होगा। सो ये इस्लामिक बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जो शरीयत लॉ, जो मुस्लिम्स का लॉ होता है ना, या जो मुस्लिम्स के अपने जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं वो हमेशा शरिया लॉ में ही मेंशन्ड होते हैं। ठीक है, तो इस शरिया लॉ के लिए आपके पास एक इस्लामिक बैंक जो होता है वो हमेशा शरिया लॉ पे काम करता है। ठीक है, हमेशा किस पे काम करता है, शरिया लॉ पे काम करता है। और इस इस्लामिक बैंक की कैटेगरी रहेगी कि दे कैन नॉट पे और चार्ज इंटरेस्ट ऑन देयर क्रेडिट गिवन, और क्रेडिट जो भी उन्होंने क्रेडिट दिया है या फिर जो डिपॉजिट्स उन्होंने लिए हैं कस्टमर से, उस पर कभी भी ना तो वो इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं और ना ही इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। तो ये काम कैसे करते हैं, ये बेसिकली प्रॉफिट बेसिस पे काम करते हैं। कहने का कुछ नहीं है, ये इंटरेस्ट को प्रॉफिट बोल देते हैं, ये इंटरेस्ट को प्रॉफिट बोल देते हैं कि अगर आपने 10 लाख का लोन हमसे लिया है, 10 लाख का लोन अगर लिया है तो हम आपको वापस जो करेंगे, तो हम आपको बेसिकली अगर आपकी 10 लाख की डिमांड है तो हम आपको 9 लाख रुपए देंगे और 1 लाख रुपए हम अपना प्रॉफिट रख लेंगे। कहने का मतलब वही है, जो नॉर्मल बैंक क्या करते हैं, 10 लाख पे इंटरेस्ट रेट चार्ज करके 1 लाख वो एज अ इंटरेस्ट ले लेंगे हमसे। ठीक है, इन्होंने 1 लाख अपना एज अ प्रॉफिट ले लिया। ठीक है, सो इसके साथ साथ इनमें सिर्फ इन बैंक्स में सिर्फ वही एक्टिविटीज परमिटेड होंगी जो शरिया लॉ में परमिटेड है। जैसे लिक्वर मुस्लिम लॉ में परमिट नहीं होता है। तो ये सभी बैंक्स जो इनके डिपॉजिट्स हैं, कस्टमर की जो डिपॉजिट्स हैं इनके पास, वो उन सब सेक्टर्स में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं या उन सब सेक्टर्स में लोन नहीं दे सकते हैं जो शरिया लॉ के अकॉर्डिंग आपका अलाउड नहीं है। ठीक है, जैसे लिक्वर इंडस्ट्री के लिए आप नहीं दे सकते हो। किंगफिशर का अगर ऑनर आपके पास लोन लेने आता है इस्लामिक बैंक के पास, तो आप उसको लोन नहीं दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्वर प्रोडक्शन हो रहा है। लिक्वर प्रोडक्शन आपका इस्लामिक बैंक का इस्लामिक यानी शरिया लॉ के अकॉर्डिंग अलाउ नहीं है। ठीक है, देन कम्स नेक्स्ट पॉइंट इज कि दीज इस्लामिक बैंक्स, इंडिया में क्या है ना, इंडिया में ये जो बैंक्स है ये इलीगल नहीं है। इंडिया में इस्लामिक बैंक्स आर नॉट इलीगल, but they are working in the unorganized sector, that is they are not regulated by the RBI। तो इन केस अगर आपने इस्लामिक बैंक में, किसी भी इस्लामिक बैंक में
अपना पैसा अगर उस आपने डिपॉजिट कर रखा है, ठीक है, किसी भी इस्लामिक बैंक में अगर आपने अपना पैसा डिपॉजिट कर रखा है, तो उसके रिटर्न में आपको अगर वो बैंक करप्ट हो जाता है, तो आप फिर इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते हो। जैसे कि आपका अभी आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर बैंक करप्ट हो जाता है तो उसके कस्टमर्स को 5 लाख का इंश्योरेंस देती है। 5 लाख का, आप 5 लाख तक का क्लेम कर सकते हो। तो ये 5 लाख का क्लेम आप इस केस में नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है इस्लामिक बैंक्स का कंसेप्ट। सो इस्लामिक बैंक्स, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये हमेशा शरिया लॉ के अकॉर्डिंग काम करता है। दे कैन नॉट पे और चार्ज इंटरेस्ट, only invest in activities permitted under Sharia law. For example, liquor is not permitted, so you cannot give loans to any customer who is asking the loan for the or whose purpose for taking the facility is establishment of liquor या production of liquor. So these in India, these banks are not illegal, but they are working in the unorganized sector. Here unorganized sector मतलब है कि these are not regulated by RBI. ठीक है, पॉइंट क्लियर है। देन नेक्स्ट आता है वेंचर कैपिटल फंड्स। वेंचर कैपिटल फंड्स बहुत कॉमन है, आपको न्यूज में आजकल खूब सुनने को मिल रहा होगा। बेसिकली ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये, जो इनोवेटिव वेंचर्स यानी इनोवेटिव स्टार्टअप्स को फंड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या करते हैं, ये ऐसा नहीं होता कि ये जो स्टार्टअप्स होते हैं ना, ये जो इनके शेयर्स खरीद लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी कैपिटल। ये याद रखना कि 90% वेंचर कैपिटल्स जो होते हैं ना, वीसी वेंचर कैपिटल फंड्स जो होते हैं ना, ये हमेशा इक्विटी कैपिटल के बेसिस पे वर्क करते हैं, यानी ये कंपनी के शेयर्स को खरीद लेते हैं। ठीक है, अब सपोज इन्होंने सपोज 2000 का एक शेयर है और इन्होंने 100 शेयर खरीद लिए, तो कितने हो गए, ये सीधा सीधा 2 लाख रुपए हो गए। तो इन रिटर्न ये कस्टमर को 2 लाख रुपए पे कर देंगे, और जो भी शेयर्स के बेसिस पे जो भी प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट अपने पास रखते रहेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल है आपका इन्फोसिस वेंचर कैपिटल लिमिटेड। सो ये कंसेप्ट चलता है आपका वीसीएफ का, जिसको बोलते हैं वेंचर कैपिटल फंड्स। ठीक है, ये काफी टाइम से न्यूज में भी है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, सो इनका काम होता है जो इनोवेटिव वेंचर्स यानी जो स्टार्टअप्स होते हैं उनको फाइनेंस प्रोवाइड करना, और ये नॉट हमेशा बट 90% केसेस में ये जो फंड देते हैं वो इक्विटी कैपिटल, यानी इक्विटी कैपिटल में मतलब है वो उन स्टार्टअप्स के शेयर्स को परचेज कर लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल है आपका इन्फोसिस वेंचर कैपिटल लिमिटेड। ठीक है, यहां तक क्लियर है। देन आपका नेक्स्ट आता है प्राइम लैंडिंग रेट। ये टर्म भी आपको काफी सारे सुनने को मिलेंगे। बेसिकली जो प्राइम लैंडिंग रेट होता है ना, इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच बैंक लैंड्स टू इट्स प्राइम कस्टमर, यानी प्राइम बोरो। प्राइम मतलब जो सबसे ज्यादा ट्रस्ट वर्दी होता है, जिसका क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी होती है, इसकी क्रेडिट रेटिंग इज गुड। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग इज गुड। देन ये आपका लीस्ट फ्लोर रेट की तरह काम करता है। अगर आपको कोई भी कमर्शियल बेसिस पे लोन देना है, तो आप प्राइम लैंडिंग रेट से कम लोन इंटरेस्ट रेट पे लोन नहीं दे सकते हो। ये एज अ बेंचमार्क और रेफरेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरह काम करता है। ठीक है, बेंचमार्क या रेफरेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट की तरह काम करता है, याद रखना। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आरबीआई ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए क्या करा, उन्होंने एक पॉलिसी निकाली कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लोन दिया जाएगा वो दिया जाएगा हमेशा पीएलआर प्लस 4% पे। यानी अगर पीएलआर 8% रखा गया है, तो जो एसएसआई को लोन दिया जाएगा वो 12% पे दिया जाएगा। ठीक है, वो हमेशा आपको 12% पे दिया जाएगा। सो इस तरीके से कंसेप्ट चलता है। ये आपका एक बेंचमार्क की तरह सेट हो जाता है, और इसको बेंचमार्क मान के इसके ऊपर प्लस करेंगे, प्लस कितना भी आपको डिफरेंट सेक्टर्स में, लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई से एजुकेशन सेक्टर की बात करूंगा, अगर मैं आपकी एजुकेशन सेक्टर की बात करूंगा, तो इट विल बी पीएलआर प्लस समथिंग 5% हो गया, 6% हो गया। तो यहाँ पे इन्होंने प्राइम लैंडिंग रेट को बेस रेट मांगना है, और इसके ऊपर 5% या 6% का जो इंटरेस्ट रेट ये चार्ज कर रहे हैं, दैट विल बी द टोटल इंटरेस्ट रेट। सो हियर द टोटल इंटरेस्ट रेट फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज विल बी 12%। ठीक है, ये हमेशा आरबीआई के द्वारा कैलकुलेट किया जाता था। तो अब इसमें इश्यू यह आया कि भाई आरबीआई क्या कर रही है, सब बैंक्स के लिए कॉमन पीएलआर सेट कर देती है। ठीक है,
तो यहाँ से इशू ये आया कि सब बैंक्स की कॉस्ट ऑफ, कभी भी याद रखना जो बैंक्स के इंटरेस्ट रेट वगैरह होते हैं ना, वो हमेशा उसके डिपेंड करते हैं कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स, मतलब वो किस कॉस्ट पे फंड्स को रेस कर रही है, यानी वो डिपॉजिटर्स को कितना इंटरेस्ट रेट दे रही है, डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट रेट कितना दे रही है, इंटरबैंक इंटरेस्ट रेट कितना है, इंटरबैंक इंटरेस्ट रेट कितना है, ठीक है, रेपो रेट कितना है, रेपो रेट मतलब द रेट एट विच बैंक बोरोस फ्रॉम आरबीआई, ठीक है। इस इन सभी के आधार पे हमेशा कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड डिसाइड होती है। अब आरबीआई पीएलआर खुद अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे बैंक्स का ये था कि सबका इंटरेस्ट रेट, सबकी कॉस्ट, सभी बैंक्स का कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड हमेशा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इस वजह से आप, जैसे आपका क्या होता है, एसबीआई अपने डिपॉजिटर्स को 6.7% दे रहा है, ठीक है, आईसीआईसीआई अपने डिपॉजिटर्स को सेविंग अकाउंट्स में 7% दे रहा है, एचडीएफसी अपने कस्टमर्स को 8.5% दे रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है ना, यहाँ पे एचडीएफसी की कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड ज्यादा हो जाएगा क्योंकि उसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गया, ठीक है। तो पर यहाँ पे आरबीआई क्या कर रही थी, पीएलआर सबके लिए सेम रख रही थी, इस वजह से काफी बैंक्स को नुकसान हो रहा था और वो अपने डिपॉजिटर्स को जो इंटरेस्ट रेट दे रहे थे वो डिक्रीज करना शुरू कर दिया था उन्होंने, ठीक है। तो इस चीज को अवॉइड करते हुए 2010 में आरबीआई ने पीएलआर को बेस रेट से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, 2010 में पीएलआर को बेस रेट से रिप्लेस कर दिया। बेस रेट की सेम डेफिनेशन है, मतलब इट इज द फ्लोर रेट और द मिनिमम रेट एट विच बैंक अपने प्राइम कस्टमर्स को यानी प्राइम बोरोवर्स को पैसा देती है, ठीक है, जिनकी जिनकी क्रेडिट रेटिंग काफी ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। सो इट इज द सेम डेफिनेशन एज पीएलआर। एस्टिमेशन इज बेस्ड ऑन कॉस्ट। अब यहाँ पे क्या होता है, बेस रेट के अंदर कॉस्ट एनालिसिस स्टार्ट हो गई थी, कॉस्ट एनालिसिस स्टार्ट करनी शुरू कर दी थी। मतलब क्या करा आरबीआई ने, अब आरबीआई खुद कैलकुलेट नहीं कर रही है, आरबीआई खुद कैलकुलेट नहीं कर रही है, आरबीआई सिर्फ गाइडलाइंस प्रोवाइड कर रही है कि जो आप अपनी, जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड है, जो अभी आप पब्लिक से जो भी आप पैसा इकट्ठा कर उठा रहे हो, किस भी तरीके से उठा रहे हो, वो हमारी गाइडलाइंस के बेसिस पे होगा, और जो आप कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड कैलकुलेट करोगे वो हमारे गाइडलाइंस के मुताबिक होगा, पर आप अपनी कैलकुलेशन खुद कर सकते हो, मतलब आप ओन कैलकुलेट कर सकते हो, बट वो हमारी गाइडलाइंस के बेसिस पे होना चाहिए। अगर हमने उसका ऑडिटिंग करी और हमें पता चला कि गाइडलाइंस फॉलो नहीं हुआ है, तो फिर आपके ऊपर फाइन लगेगा, ठीक है। सो यहाँ पे बेस रेट हमेशा डिफरेंट फॉर डिफरेंट बैंक्स हुआ, यहाँ पे क्या हुआ था, आपका पीएलआर सभी बैंक्स के लिए सेम रखा गया, बट बेस रेट अब क्या करा गवर्नमेंट, आरबीआई खुद तो कैलकुलेट कर नहीं रही है कॉमन सबके लिए, आरबीआई ने कॉमन गाइडलाइन निकाल दी है, उस गाइडलाइन के आधार पे सभी बैंक अपने अपने बैंक रेट को, अपने अपने बेस रेट को कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट बैंक्स, ठीक है, दैट्स व्हाई, ठीक है, इट इज ऑलवेज डिफरेंट फॉर डिफरेंट बैंक्स। बट यहाँ से एक और प्रॉब्लम क्रिएट हुई, किसी बैंक का बहुत ज्यादा है, किसी बैंक का कम है, किसी बैंक का ज्यादा है, किसी बैंक का और कम है, और कम है, ठीक है, इस वजह से। और एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट थी कि रेपो रेट का कंसेप्ट मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। रेपो रेट होता है कि बैंक्स आरबीआई से बोरो करते हैं, ठीक है, बैंक्स अपने कुछ पैसा आरबीआई से बोरो करते हैं, तो आरबीआई उसके बदले में एक इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, तो उस इंटरेस्ट रेट को रेपो रेट बोलते हैं, ठीक है। तो मार्केट में जब भी आपका, मार्केट में होता क्या है, जब मार्केट में महंगाई कम होती है या फिर ग्रोथ कम हो रही होती है ना, तो आरबीआई रेपो रेट को कम कर देता है, आरबीआई रेपो रेट को कम कर देता है। ये मॉनेटरी पॉलिसी की टर्म्स है, इसको मैं आगे लूंगा, पर ये यहाँ पे जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आरबीआई क्या कर देता है, रेपो रेट कम कर देता है, इसकी वजह से क्या होता है, बैंक्स को कम इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा आरबीआई को, तो बैंक्स जो कस्टमर को आगे लोन देगा उसका भी इंटरेस्ट रेट कम कर देगा, इंटरेस्ट रेट कम कर देगा ना। जैसे अभी आपने कोरोना के टाइम्स पे देखा, रेपो रेट 4% कर दिया आरबीआई ने 4% कर दिया, तो बैंक्स ने अपना होम लोन्स के 7% से कम कर दिया, है ना। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेपो रेट, ठीक है, ताकि इससे क्या होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे, जब ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे तो मार्केट में ज्यादा से ज्यादा पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ेगी तो ग्रोथ बढ़ेगी, और इससे क्या होगा, जीडीपी ग्रोथ होगी, ठीक है। सो दिस टर्मिनोलॉजी इज नोन एज मॉनेटरी ट्रांसमिशन, मतलब
इफेक्ट ऑफ लोअर रेपो रेट ऑन मार्केट। अगर आपने रेपो रेट कम कर दिया आरबीआई ने, पर बैंक्स ने अपना रेपो, सपोज रेपो रेट जो आरबीआई ने कम करा वो 125% कम कर दिया, पर बैंक ने सिर्फ 50-60% अपना लोन रेट कम करा, तो इससे क्या होगा, मॉनेटरी ट्रांसमिशन तो फेल हो गया ना, क्योंकि आरबीआई ने अपना रेपो रेट कम करा ताकि बैंक्स के लोन रेट कम हो जाए। पर यहाँ पे तो वो केस नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे जो बेस रेट है उसमें मॉनेटरी पॉलिसी का कहीं कहीं इस्तेमाल था ही नहीं गाइडलाइंस में। तो इसको अपडेट करते हुए आरबीआई ने 2016 में बेस रेट की जगह एमसीएलआर का यूज करना शुरू करा। ठीक है, एमसीएलआर क्या है आपका, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट, इसकी डेफिनेशन वही है, इट इज द मिनिमम रेट एट विच द बैंक गिव्स क्रेडिट टू इट्स प्राइम बोरोवर, जिनकी क्रेडिट रेटिंग काफी अच्छी होती है, जिनकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी होगी। ठीक है, अब MCLR इज फिक्स्ड बाय बैंक्स बेस्ड ऑन देयर मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ रेजिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ फंड, एडिशनल यूनिट ऑफ फंड। ठीक है, ये मार्जिनल का मीनिंग मैं आपको ऑलरेडी माइक्रो इकोनॉमिक्स वाले टॉपिक्स में डिस्क्राइब कर चुका हूं, तो एक बार आप लोग रिवाइज कर लेना। इट इज मार्जिनल मतलब होता है हमेशा द कॉस्ट ऑफ एडिंग एन एडिशनल यूनिट, ठीक है, विल बी नोन एज द मार्जिनल कॉस्ट, और ये डायरेक्टली लिंक होगी रेपो रेट के साथ। ठीक है, डायरेक्टली लिंक होगी रेपो रेट के साथ, क्योंकि जो मार्जिनल जो बैंक होता है वो आरबीआई से एट लास्ट बोरो, हमेशा लास्ट में बोरो करता है, एट लास्ट में बोरो करेगा। सो दिस इज द मार्जिनल यूनिट that bank is borrowing from RBI. So this marginal cost is added in the guidelines of RBI, and that is why this cost of यानी loan rate is now linked to रेपो रेट। ठीक है, समझ में आ गया है पॉइंट। सो अभी हम जो करेंटली यूज कर रहे हैं वो एमसीएलआर यूज कर रहे हैं, और एमसीएलआर इज अगेन डिसाइडेड बाय बैंक्स ओनली, बट इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन द मार्जिनल कॉस्ट। यानी मार्जिनल कॉस्ट मतलब दे आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द रेपो रेट, बिकॉज द आरबीआई इज द लास्ट रिसोर्ट ऑफ द बैंक, यानी इट इज द लास्ट बैंकर ऑफ बैंक जिसे बोलते हैं हम। ठीक है, दैट इज आरबीआई। ठीक है, सो यहाँ से आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा ये सारे पॉइंट्स। किसी में भी कुछ भी डाउट होना आप लोग कमेंट कर देना, या फिर जो डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म है उसमें अपना कमेंट रेस कर देना, हम उसका डाउट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देन कमिंग टू बेसल नॉर्म्स। ठीक है, ये भी आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे लगातार 2018, 2019 और 2017 में सवाल आ चुका है। ठीक है, तो बताऊंगा अभी क्या क्वेश्चन थे वो आगे। तो ये जो बेसल नॉर्म्स होते हैं ना, बेसल एक सिटी का नाम है जो स्विट्जरलैंड में है, वहां पे ये बेसिकली बैंक्स के ग्लोबल रूल्स बने थे, जो भी सेंट्रल बैंक हैं उनको ये रूल्स फॉलो करने थे ताकि वो अपनी कंट्री के बैंक्स को रेगुलेट कर सके। ठीक है, इनको सबसे पहले 1988 में बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन के द्वारा बनाया गया था। इनका ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया था वो बीसीबीएस के द्वारा किया गया था, अंडर द एजिस ऑफ यानी under the leadership or chairmanship of या under the guidance of BIS. BIS is Bank for International Settlement. राइट। देन ये जो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है ना, 1930 में बेसिकली सेटअप किया गया था। जो 1930 में आपके ग्लोबल क्राइसिस हुए थे ना, उसके बाद BIS को सेटअप किया गया था, और ये सबसे पुराना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एक ग्लोबल लेवल पे सेटअप किया गया था। ठीक है, इसका काम होता है जितने भी इसके मेंबर्स हैं सभी मेंबर्स का, जैसे इंडिया हो गया आपका, यूएसए हो गया, ठीक है, रशिया हो गया, एसेट्रा। ठीक है, तो इन सभी कंट्रीज यानी इन सभी मेंबर्स के सेंट्रल बैंक के बीच में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बढ़ाना, ये इसका बेसिकली काम है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेसल में, जो कि एक सिटी है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो 2004 में आपके बेसल 1988 में बेसल नॉर्म्स आए, यानी जिसे हम बेसल फर्स्ट बोलते हैं, बेसल ड्राफ्ट बोलते हैं जिसे हम लोग। ठीक है, 2004 में बेसल 2 आया, यानी बेसल 1 में कुछ इंप्रूवमेंट करके उसके रूल्स में कुछ चेंज करके। देन 2008 में सब प्राइम क्राइसिस हुए। देन 2010 में आपका बेसल 3 नॉर्म्स आए। ठीक है,
जो इनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, अब इनमें क्या क्या चेंजेस आए वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। जो इनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना, वो इनके ऑब्जेक्टिव रहे हैं एनहेंस द रेजिलियंस, मतलब रेजिलियंस बढ़ाना। कैसे बढ़ाएंगे? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बढ़ा के। ये क्या होता है नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे हम। एनहेंस सुपरविजन, सुपरविजन बढ़ाना बैंक्स के ऊपर, किसको लोन दे रहे हैं, क्या लोन दे रहे हैं, बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। देन आपका इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करना, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा रहे हैं ये, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना ये इनके ऑब्जेक्टिव है। तो इस कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आपका प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया था। यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में पूछा गया था कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की इनमें से करेक्ट डेफिनेशन कौन सी है, ठीक है। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो हमेशा होता है आपका कैपिटल अवेलेबल विद द बैंक डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स इनटू 100, ठीक है। ये जो अभी करंटली आरबीआई ने सेट कर रखा है, ये सभी बैंकों का 9% या उससे ज्यादा होना चाहिए। जितने ज्यादा रिस्की कैपिटल में उसने इन्वेस्ट कर रखा होगा, उतना ही ज्यादा उसके पास कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल इज द ऑपरेशनल कैपिटल, ऑपरेशनल कैपिटल, ठीक है। या यू से पेड अप कैपिटल, उसके पास पेड अप कैपिटल होना चाहिए। पेड अप कैपिटल मतलब शेयर होल्डर्स मनी होना चाहिए उसके पास, ठीक है। तो जितना ज्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट होगा, उतना ही ज्यादा उसके पास कैपिटल होना चाहिए, ताकि अगर वो जो रिस्क है, अगर वो पैसा डूब गया आपका, तो उसके पास इतना कैपिटल होना चाहिए कि डिपॉजिटर्स को फर्क ना पड़े, डिपॉजिटर्स को लॉस ना हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आपका सुपरविजन बढ़ाने के लिए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए और रेजिलियंस बढ़ाने के लिए कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो सेट करा गया, और ये इसके मेंबर्स के सभी सेंट्रल बैंक को अपने अपने बैंकों के लिए लागू करना था। आरबीआई ने इसको 9% या उससे अधिक रख रखा है, ठीक है। अब ये बेसिकली होता कैसे है ना, ये चीज समझ लो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल ले लो यहां से, ठीक है। इसके लिए स्पेस चाहिए होगा, तो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। राइट, तो ये थोड़ा सा बीच में स्लाइड चली गई थी, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है। मतलब इसमें समझो आप, यहाँ से सपोज एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को। सपोज आपका शेयर होल्डर ए है, बैंक है आपका एबीसी, एबीसी बैंक है, ठीक है। इसका जो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर ए, इसका इसमें 1 करोड़ रुपए है, ठीक है। इस बैंक के पास जो डिपॉजिट्स हैं, डिपॉजिट्स किसके होंगे? हमेशा कॉमन मैन के होंगे, वो हैं आपके लगभग 100 करोड़, ठीक है। और जो इसने लोन्स दे रखे हैं, वो दे रखे हैं 75 करोड़ के, ठीक है। अब इसका प्रॉफिट क्या होगा? सपोज का इस बैंक का प्रॉफिट क्या होगा? नाउ अगर इसने इंटरेस्ट रेट 15% चार्ज कर रखा है, इंटरेस्ट रेट 15% रख रखा है, सो यहाँ पे उसका प्रॉफिट बताओ क्या होगा? प्रॉफिट होगा हमेशा 15% ऑफ 75 करोड़, 15% ऑफ 75 करोड़, राइट। सो दिस इज समवेयर अराउंड 11 करोड़ रुपीस, ठीक है, 11 करोड़ रुपीस। अब इस 11 करोड़ में से आपका 6 करोड़ रुपीस ऑपरेशनल कॉस्ट है। 6 करोड़ क्या है आपकी? ऑपरेशनल, मतलब जो कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फंड, कॉस्ट ऑफ रेजिंग द फंड। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना रह गया उसका? 11 माइनस 6 यानी 5 करोड़। अब सपोज सपोज 5 करोड़ का लॉस हो जाता है, तो 5 करोड़ का लॉस हो गया, तो हु विल बियर द लॉस? डिपॉजिटर्स। 5 करोड़ का लॉस हो गया भाई, तो शेयर होल्डर का तो सिर्फ 1 ही करोड़ था ना, बाकी 4 करोड़ कहां से जाएंगे? डिपॉजिट्स में से जाएंगे, ठीक है। तो लॉस किसका हुआ यहाँ पे? डिपॉजिटर्स का लॉस हुआ ना। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए ये एडिक्वेसी रेशियो लाया गया कि हमेशा लॉस शेयर होल्डर का होना चाहिए, डिपॉजिट्स का नहीं होना, डिपॉजिटर्स का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब सी आपका ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कैलकुलेट कैसे होगा? फॉर एग्जांपल, ये जो 75 करोड़ का लोन है, ये 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, ठीक है। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, ठीक है। कैटेगरी ए में आपका 30 करोड़ का लोन दिया गया है, कैटेगरी बी में आपका लगभग 25 करोड़ का लोन दिया गया है। कितना हो गया? 30 + 25 55,
और सी में आपको 20 करोड़ का लॉस दिया गया है। ठीक है, ये जो है आपके ये लो रिस्क है, ठीक है, ये आपके हैं मीडियम रिस्क और ये हैं आपके हाई रिस्क। ठीक है, इस पे इन्होंने वेटेड एवरेज दे रखा है, सबको वेटेड एवरेज दे रखा है 1.2, 1.8 एंड दिस 2 ये आप बोल लो 2.4 दे दो। ठीक है, तो ये जो वेटेड वैल्यूज है ना, ये आरबीआई के द्वारा सेट की जाती है और आरबीआई इनको रिवाइज करता रहता है, आरबीआई कीप्स ऑन रिवाइजिंग देम। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल के लिए लिए हैं। तो व्हाट विल बी द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कितना होगा? कैपिटल कितना है? 1 करोड़ रुपए है। फॉर्मूला क्या है? क्या इसका 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 फॉर्मूला होता है कैपिटल यानी 1 करोड़ डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड एसेट्स। अब आरडब्ल्यूए कैसे कैलकुलेट करोगे? आरडब्ल्यूए हमेशा कैलकुलेट करोगे आप 30 इंटू 1.2 प्लस 25 इंटू 1.8 प्लस 20 इंटू 2.4। ठीक है, तो लगभग इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0.7% आएगी, यानी हमारी लगभग 9% के आसपास होना चाहिए, ये है लगभग 7% के आसपास। तो जितना ज्यादा आरडब्ल्यूए की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा कैपिटल बैंक के पास होना चाहिए। जितना ज्यादा आरडब्ल्यूए की वैल्यू होगी उतना ही ज्यादा कैपिटल आपका बैंक के पास होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखना। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रेडिट ये एक्यूरेसी रेशियो। ठीक है, सो यहाँ से कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जिसे बोलते हैं हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये इंपॉर्टेंट है ना, आपको एग्जांपल देके समझा दिया है कि सपोज एबीसी बैंक है आपका, शेयर होल्डर का इसमें 1 करोड़ रुपए है, डिपॉजिट 100 करोड़ रुपए हैं, डिपॉजिट किसके हैं? पीपल के हैं, लोन 75 करोड़ है, इंटरेस्ट 15% है, तो प्रॉफिट क्या होगा? 15% ऑफ 75 करोड़। ठीक है, यानी इक्वल टू 11 करोड़ रुपीस। अब इसका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो 6 करोड़ रुपए है, तो प्रॉफिट कितना हो गया इसका? 11 माइनस 6 5 करोड़ रुपीस। ठीक है, अब सपोज उसे 5 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है, तो इस 5 करोड़ में शेयर होल्डर का तो सिर्फ 1 करोड़ है ना, चार ज्यादा नुकसान किसका? डिपोजिटर्स का है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए बेसल नॉर्म्स में एक एडिक्वेसी रेशियो का कंसेप्ट लाया गया, जिसमें अगर पांच इसमें इसमें क्या होगा कि जो भी आपका लोन है उसको कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा, लो रिस्क कैटेगरी, मीडियम रिस्क कैटेगरी, हाई रिस्क कैटेगरी, और हर एक कैटेगरी को आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक के द्वारा एक वेटेड एवरेज दिया जाएगा। ठीक है, so this is how we calculate capital adequacy ratio, और currently RBI का जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो सेट किया हुआ है वो 9% सेट किया हुआ है, यानी सभी बैंकों को 9% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना कंपलसरी है। ठीक है, समझ में आ गया? जितना ज्यादा आरडब्ल्यूए होगा उतना ही ज्यादा आपका कैपिटल भी होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका आरडब्ल्यूए ज्यादा है और कैपिटल कम है तो बैंकरप्सी की चांसेस हमेशा ज्यादा होंगी। ठीक है, सो बेसल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो पूरा कैपिटल होता है ना, जो ये वाला टर्म है कैपिटल, यानी जो शेयर होल्डर्स का पैसा है यहाँ पे, यानी जिस जिस पैसे से बैंक ऑपरेट कर रहा है, जो टोटल मनी उसके पास है, वो दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, टायर 1 कैपिटल और टायर 2 कैपिटल। ये आपको बहुत ज्यादा न्यूज में सुनने को भी मिली होंगी। ठीक है, जो टायर 1 कैपिटल होती है वो आपके कोर कैपिटल होती है, और जो टायर 2 कैपिटल होती है वो सप्लीमेंट्री कैपिटल होती है। टायर 1 इज कोर कैपिटल, इसको इसमें आते हैं आपके शेयर कैपिटल और पेड अप कैपिटल, मतलब जो एक्चुअल मनी उसके पास अपने बैंक को ऑपरेट करने के लिए होता है, यानी जो शेयर होल्डर्स ने एक्चुअल मनी उस बैंक को दे रखा है। ठीक है, देन अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स जिसको हम रिजर्व्स बोलते हैं, एंड द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, और टायर 2 में आते हैं आपके सप्लीमेंट्री कैपिटल जिसे सबऑर्डिनेटेड डेब्ट बोलते हैं। सबऑर्डिनेटेड डेब्ट मतलब वो सभी शेयर होल्डर्स कि यदि बैंक आपका लिक्विडेट होता है मतलब बैंक बंद होता है, तो उसका जो एसेट सेल करके जो भी पैसा रिकवर होगा उसमें सबसे लास्ट में इनका नंबर आएगा। ठीक है, उसमें सबसे लास्ट में उनका नंबर आएगा, वो बोला जाता है हमेशा सबऑर्डिनेटेड डेब्ट। ठीक है, सो टायर 1 इज द कोर कैपिटल, हमेशा इन तीनों कैटेगरी को या जो भी टायर 1 में आएगा इनको हमेशा पहले पैसा मिलेगा, बाद में इन सबऑर्डिनेटेड डेब्ट वालों को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो आपका शेयर कैपिटल या पेड अप कैपिटल और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स होते हैं ना, इनको कंबाइनली बोला जाता है कॉमन इक्विटी। बैंक्स का कॉमन इक्विटी हमेशा उसका पेड अप कैपिटल और जितना भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स उसके पास रखा रहता है, मतलब जो लोन देने के लिए अवेलेबल है, तो लोन के लिए अवेलेबल है या फिर जो शेयर्स बेचने के लिए अवेलेबल है, मतलब कोई इस बैंक के शेयर खरीदता है
तो यहाँ से जो उसको पैसा दिया जा सकता है ना, दैट विल बी द कोर कैपिटल। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है इसमें? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बेसिकली होता है, दे आर द सिक्योरिटीज जो इनके शेयर, जो भी इनके ऑनर होते हैं, जो इन सिक्योरिटीज के ऑनर होते हैं, यानी जो सिक्योरिटीज ये बैंक से खरीदते हैं और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में आता है, उनको लिमिटेड ऑनरशिप मिलती है। पूरी ऑनरशिप नहीं मिलेगी, लिमिटेड ऑनरशिप मिलेगी। दे कैन अटेंड द मीटिंग्स, ये मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं बोर्ड ऑफ मेंबर्स की, ठीक है, पर कभी भी वोट नहीं कर सकते हैं। इनको हमेशा फिक्स डिविडेंड मिलता है। और जब भी कंपनी लिक्विडेट होती है या बैंक लिक्विडेट होता है, तो सबसे पहले बाकी शेयर होल्डर से पहले इन ओनर्स को, ये जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ओनर्स होंगे, इनको हमेशा सबसे पहले पैसा मिलेगा। ठीक है, इन सबको पहले सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, राइट। एट द टाइम ऑफ बैंकरप्सी, अगर देखो टायर 1 आपका ज्यादा है तो चांस ऑफ बैंकरप्सी कम हो जाएगा। टायर 1 अगर आपके पास अच्छी खासी है, यानी आपके पास पेड अप कैपिटल हो गया, देन आपके पास रिजर्व्स हो गए, या फिर आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल्स हो गई, अगर ये ज्यादा है तो ऑब्वियसली आपके पास ऑपरेशनल मनी ज्यादा है, तो कैपिटल ज्यादा है और रिस्क कम है। अगर टायर 1 ज्यादा है तो आपका क्रेडिट वो एडिक्वेसी रेशियो जो होता है, ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे? इट इज कैपिटल डिवाइडेड बाय RWA into 100, है ना। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, सो दिस कैपिटल इज मोर, तो अगेन रिस्क ऑफ बैंक्रप्सी आपकी रिड्यूस हो जाएगी। तो यही तो बोल रहा है, टायर 1 अगर इंक्रीज होता है तो चांस ऑफ बैंक्रप्सी रिड्यूस हो जाएगा। अब बैंक्रप्सी के बाद हमेशा जो लॉस झेलना पड़ेगा वो टायर 2 शेयर होल्डर्स को झेलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको जो बताया कि ये आपका सप्लीमेंट्री डेप्ट होल्डर्स जो होते हैं, सप्लीमेंट्री डेप्ट जिसे हम बोलते हैं, इनको सबसे लास्ट में पैसा मिलता है अगर कंपनी लिक्विडेट होती है तो। ठीक है, तो करंटली जो हमारा कॉमन इक्विटी रखा गया है आरबीआई के द्वारा, इट शुड बी 4.5% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स। RWA इज रिस्क वेटेड एसेट्स। ठीक है, यानी इसमें एक टर्म आपको सुनने को मिली होगी, ग्रैंडफादरिंग मतलब होता है ग्रेजुअली कंपोनेंट्स ऑफ टायर 1 ये विल रिड्यूस, यानी कंपनी पुरानी होती जा रही है और जो उसके पास कोर कैपिटल है वो कम होती जा रही है और उसमें इन्वेस्ट करना आपके लिए रिस्की हो सकता है। इस टर्मिनोलॉजी को हम बोलते हैं आपका ग्रैंडफादरिंग मतलब एज बढ़ना, कंपनी का समय पीरियड बढ़ना और उसकी कोर कैपिटल का कम हो जाना। तो कभी भी अगर आपसे कहीं भी डेफिनेशन पूछा है ना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्रैंडफादरिंग, ये टर्म आपको इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 में भी मिलेगा, 18-19 में भी मिलेगा, 2019-20 में भी मिलेगा। तो हमेशा उसको ऐसे डिफाइन करना, द रिडक्शन इन द टायर 1 कैपिटल ऑफ द कंपनी इज कंसिडर्ड एज द ग्रैंडफादरिंग ऑफ दैट कंपनी। ठीक है, देन बेसल 3 में ना कुछ टेक्निकल टर्म्स इंट्रोड्यूस करे गए हैं, जैसे सबसे पहले आपका कैपिटल कंजर्वेशन बफर, ये जो रखा गया है आरबीआई के द्वारा 2.5% ऑफ RWA होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ से जो कंपनी, जो बैंक को रिजर्व रखना पड़ेगा अपने पास, सबसे पहले तो कॉमन इक्विटी रखनी पड़ेगी। कॉमन इक्विटी रखनी पड़ेगी, वो कितनी सेट कर रखी है? 4.5% रख रखी है। इसके ऊपर कैपिटल कंजर्वेशन बफर है तो 2.5% होना चाहिए। ठीक है, 2.5% होना चाहिए। ये जो अमाउंट है ना, ये सारे बैंक को अपने पास रिजर्व रखना पड़ेगा, वो इसको लोन के तौर पे आगे नहीं दे सकता है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 7% हो गया। ठीक है, ये स्ट्रेस यानी जैसे अभी कोरोना के टाइम्स पे आपका चल रहा है तो इस टाइम पे रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, देन कम्स योर काउंटर साइक्लिक बफर, जब हाई क्रेडिट ग्रोथ होगी, यानी जब बैंक ज्यादा से ज्यादा लैंड कर रहा होगा, उस टाइम पे आरबीआई काउंटर साइक्लिक बफर को इनिशिएट कर सकता है और इसकी रेंज 0 से 2.5% पर रहेगी। तो अब 4.5% आपका कॉमन इक्विटी हो गया, 2.5% आपका बफर हो गया, जो अभी हमने बात करी थी सीसीबी, ये कैपिटल कंजर्वेशन बफर। ठीक है, देन आपका 2.5% हो गया काउंटर साइक्लिकल बफर, तो टोटल कितना हो गया? 9.5%, यानी अपने टोटल कैपिटल का 9.5% बैंक्स को रिजर्व रखना होगा। ठीक है, वो इसे एज अ लोन नहीं दे सकता है, यानी कैपिटल RWA into 100। ठीक है, तो कैपिटल को आपको रिजर्व रखना पड़ेगा जिसको आप लोन पे नहीं दे सकते हो।
ठीक है, ये बेसिकली उन सब सिचुएशंस के लिए होता है, जैसे सब प्राइम क्राइसिस के टाइम पे हुआ था ना 2008 में। उस टाइम क्या हुआ था, जो सबसे बड़ा बैंक था लहमान ब्रदर्स, उसने अपना लोन अमाउंट यानी क्रेडिट देना बढ़ा दिया था। उसने बहुत ज्यादा क्रेडिट मार्केट में उतारा, और वो क्रेडिट जब उसको वापस नहीं मिला तो उसके साथ जितनी भी सब्सिडरी बैंक्स थे वो सब के सब फेल हो गए, सारे एनबीएफसीज फेल हो गए, और पूरा का पूरा क्रेडिट एनवायरनमेंट मार्केट का खराब हो गया। ठीक है, तो इन सब सिचुएशंस में हम काउंटर साइक्लिक बफर का इस्तेमाल करेंगे। तो बेसिकली ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, रेजिलियंस बढ़ा रहे हैं इन सब से। ठीक है, तो ये सब टर्म्स आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, देन जब भी हम बात करेंगे तो पीजे नायक कमेटी हमेशा बोर्ड ऑफ बैंक्स के गवर्नेंस के लिए बनाई गई थी। ठीक है, इसकी रिकमेंडेशंस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, रिकमेंडेशंस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इनको नोट्स में ऐड कर दिया है, तो आप लोग वहां से रीड कर लेना इनको। ठीक है, अब जब हम एनपीएस की बात करेंगे ना, एनपीएस इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, तो इनकी कैटेगरी होती है, सबसे पहले सब स्टैंडर्ड एसेट्स, मतलब वो एनपीए, वो सभी लोन जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट 12 महीने तक पे नहीं किया गया है, वो आएंगे सब स्टैंडर्ड एसेट्स। अगर वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट 12 महीने से ज्यादा तक पे नहीं किया जाता है, दैट विल बी डाउटफुल एसेट्स। और लॉस एसेट रहेगा आपका, जो 12 महीने से ज्यादा एक तो पे नहीं हुआ है, और उसके साथ साथ बैंक ने उनको रिकवर करने की चांसेस को भी कम कर दिया है। ठीक है, मतलब कोई चांस ही नहीं है उनको रिकवर करने के लिए, उनको बोलेंगे लॉस एसेट। ठीक है, देन एक टर्म आपको सुनाई देगी कैपिटल गियरिंग। कैपिटल गियरिंग क्या होता है आपका, इसको हाई लेवरेज रेशियो भी बोलते हैं और डेब्ट इक्विटी रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। इट इज हमेशा टोटल लोन दैट इज द डेब्ट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी। ठीक है, यदि ये कैपिटल गियरिंग ज्यादा होगा या डेब्ट इक्विटी रेशियो ज्यादा होगा ना, तो एनपीए की चांसेस हमेशा ज्यादा होंगी। क्यों ज्यादा होंगी, क्योंकि टोटल लोन तो ज्यादा जा रहा है, यानी इसमें क्या होगा, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कम हो जाएगा। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कम हो जाएगा क्योंकि लोन ज्यादा है और कैपिटल कम है आपकी। तो बेसिकली कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का ही रिवर्स बोलते हैं डेब्ट इक्विटी रेशियो या कैपिटल गियरिंग। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ना कैपिटल, ये बैंकिंग का लेक्चर खत्म होता है। बैंकिंग में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ टर्म्स मिलेंगे, जैसे जैसे आपको बैंकिंग रिफॉर्म्स, जिसमें हम बेसिकली आपका रंगाराजन कमेटी की रिकमेंडेशंस वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, रंगाराजन कमेटी रिकमेंडेशंस। ठीक है, ये सब रिकमेंडेशंस वगैरह ना ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उसके लिए फिर भी आप लोगों को नोट्स में ऐड कर दिया। जो नोट्स अपलोड करूंगा उसमें आपको सारी रिकमेंडेशंस मिल जाएंगी। ठीक है, एक बार गो थ्रू कर लेना उनको, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है वो। और कोई डाउट होगा तो गूगल फॉर्म, जो आपका डिस्क्रिप्शन में एडिड है ना, तो गूगल फॉर्म का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक करना, वहाँ पे आपका लिंक है, उसमें जाके अपने डाउट्स को अपडेट कर लेना, हम वो संडे को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।